Hello and welcome back to your channel Phoenix Safari. My name is Abhishek and I believe you guys are doing good and studying properly. Guys, so in the previous class we have done the conductors. Now we are going to discuss the capacitor. One of the very important and the easy topic, and every time you will be getting some or other questions from this topic. Now when I say capacitor, I'm sure you must know that it is all about the storage of energy, right? It's a device which stores the energy. But the energy should be stored in which form? It should be stored in the form of electrical lines of field, or you can say the electrical energy. ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. So capacitor is a device which is used to store the energy. Capacitor stores energy in terms of or in terms of electrical field or electrical field lines. ठीक है, this is a very fundamental definition of capacitor. Going forward, we need to understand how does it store the energy. Energy store कैसे करता है और इसमें क्या क्या parameters है which is going to help you to understand and discuss the question or do the questions of the capacitor. Now, as I told you, it stores the energy in the terms of the electrical field. But we know that if I have a charge, guys, let's say if I have a charge, let's suppose plus Q charge is here, it is going to, produce the electrical lines of field in all the directions. Now, which means the energy will not be concentrated. It is going to be diversified, in all the direction in 3 dimensions, right? Then why do we need capacitor? Why don't we use the simple charge? It also produces the electrical lines of field, और इसमें भी energy store होगा. Now the problem is this energy will not be constrained. एक किसी confined region में नहीं होगा. और अपन को क्या चाहिए? एक confined energy चाहिए, किसी एक particular region में चाहिए. For example, आप गैस ऑन करते हो, उस पे आप sort of किसी चीज को बॉयल करते हो या गर्म करते हो, अगर वो एनर्जी डेसिपेट हो जाए चारों डायरेक्शन में, तो आपको एनर्जी लॉस ज्यादा होगा और आपका जो एडवांटेज होगा एनर्जी का कम होगा. Another way you can understand, like for example, we make the dam on the river, right? Why? Because we want the water to be concentrated at some place, and जब भी हमको जरूरत पड़े हम उस वाटर को यूज कर सके. कैपेसिटर का भी यही हाल चाल है ना. एनर्जी चारों तरफ फैलता है आइसोट्रॉपिकली, बट हमको क्या चाहिए? किसी एक कन्फाइंड रीजन में चाहिए जहां पे जब भी मुझे जरूरत हो मैं इसको यूज कर सकूं, है ना. इन अर्लियर डेज आप जो कैमरामैन फोटो खींचते थे ना, तो साथ में एक फ्लैश होता था, एंड वो पहले चार्ज होता था और फिर फ्लैश देता था, विच मींस ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, और फिर उसको चार्ज होने के बाद ही उसको यूज कर सकते थे. बट नाउ द टेक्नोलॉजी हैज एडवांस्ड. आप कैमरा यूज करते हो, फ्लैश एज मेनी टाइम्स एज यू वांट आप उसको ले सकते हो. बट हमारे पहले के जमाने में वैसा नहीं होता था. तो अभी क्या हो गया कि अपन को चाहिए एनर्जी इन अ वेरी, जब भी चाहिए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मेरे को एनर्जी चाहिए, वो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो हम लोग कैपेसिटर्स का यूज करते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इफ आई ब्रिंग वन मोर चार्ज ओवर हियर, अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज इसके आसपास ले आता हूं, फिर क्या हो गया? दीज लाइंस ऑफ फील्ड थोड़ा डाइवर्ट करके ऐसे चला जाएगा, ना. दीज लाइंस ऑफ फील्ड विल गो लाइक दिस, ऐसे चला जाएगा वो, एंड यू कैन सी दैट more density of electric lines of field you can find in this region. ज्यादा से ज्यादा electric lines of field आपको इस region में मिल रहे होंगे, and a bit of it is gonna be spreading outward. ये बाहर थोड़ा चले जाएंगे, है ना, ऐसे आपको मिल जाएगा. But you can easily see that in this region you get more density. आपको ज्यादा density of lines field इधर ही मिलेंगे, and since we have more density आपको ज्यादा energy इधर मिलेगा. But still my purpose is not solved. Still बहुत सारे energy दाएं बाएं dissipate कर रहे हैं. ठीक है, तो फिर क्या हुआ? साइंटिस्ट ने क्या किया कि दो प्लेट्स कंडक्टिंग प्लेट्स को साथ में रख दिया, एंड बाय डूइंग दैट इंटायर लाइंस ऑफ फील्ड क्या हो गया? उन दोनों के बीच में सिमट के रह गया, और सारा का सारा एनर्जी उन दोनों के बीच में मिल गया. आपके सिलेबस में वैसे तो पैरेलल प्लेट पढ़ना है, स्फेरिकल पढ़ना और सिलिंड्रिकल पढ़ना है, बट जो मेजर ऑफ द चंक है वो पैरेलल प्लेट के अराउंड ही घूमेगा, है ना. तो आप इतना आपको समझ चुके हैं कि इट इज ऑल अबाउट द स्टोरेज ऑफ एनर्जी, और जो हमारा एनर्जी स्टोर होगा वो इन इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा. ज्यादा डेंसर होगा तो ज्यादा एनर्जी होगा. ठीक है. नाउ इसका जो लाइंस ऑफ फील्ड का जो नेचुरल टेंडेंसी क्या होता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में जाना. तो हमको उसके लिए रास्ते बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है. आपको सिर्फ ऐसा अरेंजमेंट करना है कि भैया हमारे पास दो अपोजिट चार्जेस हो जाएगा ना, वो ऐसा मान लो कि हमने एक प्लेट रख दिया और हमने एक और प्लेट यहां पर रख दिया. ठीक है. लेट्स सपोज कि इस पे हमने किसी तरह से एक पॉजिटिव चार्ज क्यों दे रखा है, तो ऑब्वियसली क्योंकि मेटेलिक है तो इसमें इंड्यूस्ड होगा कहां पे? इस पे एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट.
नाउ दैट यू नो कि दिस पॉजिटिव चार्ज एंड दिस नेगेटिव चार्ज प्लेट जो है बच्चों, दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के बीच में होता है। ये बात मैंने आपको पहले ही समझा रखा है। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा और इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होगा, चार्ज डेंसिटी। तो आपका इस तरफ जो हमारे पास चार्ज होगा वो जीरो हो जाएगा, इस तरफ जो फील्ड हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, राइट। ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इन द प्रीवियस क्लासेस। अब जाके वीडियो देख लेना, आपको उसका लिंक आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा अगर हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को दे दिया है, और ये नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली आपको डेवलप हो जाएगा, ठीक है जी। नाउ दैट एंटायर लाइंस ऑफ फील्ड इज कन्फाइंड बिटवीन दीज टू प्लेट्स, हमारा जो सारा एनर्जी है वो इसी स्पेस के अंदर वो जमा हो जाएगा, इसी स्पेस के अंदर वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। पहली बात तो समझ में आपको आ रही है। अच्छा, जनरली अगर भाई अगर हम ऐसा प्लेट ना रखें, कुछ भी रखते हैं, एक सपोज कि एक चार्ज हमारा, एक प्लस क्यू चार्ज एक बॉडी है, और एक हमारा एक ऐसा हमने बॉडी रख दिया जो कि न्यूट्रल है। नाउ दिस प्लस क्यू इज गोइंग टू इंड्यूस हमारा सर्टेन नेगेटिव चार्ज, इस तरफ आपका इंड्यूस्ड हो जाएगा बच्चों, है ना, और ये हमारा जो पॉजिटिव है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो आप देखोगे कि इसके बीच में भी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। एंड नाउ दिस पोटेंशियल, लेट्स सपोज अगर V1 मानते हैं और इसको पोटेंशियल बच्चों V2 मानोगे, तो डेफिनेटली हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, तो इसके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, है ना जी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव सम एनर्जी, और हम समझ पा रहे हैं कि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस V है दैट इज गोना बी V1 माइनस V2, और कुल मिलाकर हमारा बात जो समझ में आ रहा है कि इसमें जो चार्ज डेवलप होगा ना, जो पोटेंशियल डेवलप होगा, और दैट इज गोना बी प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। हमारा जो चार्ज होगा वो प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल बोल सकते हैं आप, आपकी मर्जी, आप उसको आराम से ऐसे बोल सकते हो। तो कुल मिलाकर हम समझेंगे कि जो Q है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्रिएट होगा वो उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो थोड़ा और हम इस डेफिनेशन को इनहांस कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटर वो होता है, जो इसको मैं साइड रख दूं, है ना। So capacitor could be defined as that electrical devices which creates a strong electric field, between the two conducting plates, right? Between the two conducting plates, and it also creates a potential difference between the plates of the capacitor. और जो चार्ज होगा जो इस पे accumulate होगा वो होगा आपके potential difference के proportional होगा। Q is going to be proportional to potential difference, and इस sign of proportionality को हम जो remove करते हैं, then we get constant, और इसी को बोलते हैं हम लोग capacitance, इसी को बोलते हैं बच्चों कैपेसिटेंस। तो कुल मिलाकर हमको समझ में आ रहा है कि अगर हम किसी भी टू कंडक्टिंग पेयर ऑफ मटेरियल को अगर हम ऐसा लिख पाए कि Q इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, तो वो एक कैपेसिटर का काम करेगा। अगर चार्ज पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल हो जाए तो वो एक कैपेसिटर का काम करता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सर ये चार्ज जो है, दिस Q, ये चार्ज कौन सा है? इज इट द एंटायर चार्ज ऑन द कंडक्टिंग प्लेट्स? अगर वो पूरा का पूरा चार्ज है, या फिर वो समथिंग एल्स है, कुछ और है ना। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो चलिए आप जल्दी से एक बात को लिख लीजिए, आप एक बात को लिखिए, द चार्ज Q इन द फॉर्मूले Q इज इक्वल टू CV, द चार्ज Q इन द फॉर्मूले Q इज इक्वल टू CV होता क्या है वो ना, होता क्या है। तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि ना, कि हमारा जो, अगर आप देखेंगे पहले पॉइंट वाइज लिख लो कुछ इसके बारे में, उसके बाद उसमें चर्चा करेंगे। सो कैपेसिटर, यू कैन से दैट, और यू कैन से दैट, हाँ, कैपेसिटर डेवलप्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस बिटवीन द बॉडीज। किस बॉडीज का बात कर रहे हैं? बिटवीन द बॉडीज, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेट्स, है ना। दो प्लेट्स हो या फिर कुछ भी हो, दो मेटेलिक जो कंडक्टिंग बॉडीज हो, उसके बीच में जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है वो उसको बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू बॉडीज के बीच में डेवलप करता है, ठीक है। नाउ कंडक्टर जो जो कैपेसिटर जो होता है वो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टिंग बॉडीज। एक बॉडी से वो नहीं बन रहा होगा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टिंग बॉडीज। एक टू कंडक्टिंग बॉडीज का एक कॉम्बिनेशन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टिंग बॉडीज, है ना। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस बिटवीन दीज टू कंडक्टिंग बॉडीज,
अगर वो चार्ज के प्रोपोर्शनल है देन दैट कॉम्बिनेशन इज गोना बी कॉल्ड एज अ कैपेसिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको नंबर 3 को लिख लो, है ना, इस पे क्वेश्चंस भी दिखाएंगे आपको। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस developed between the conducting bodies or simple bodies लिख लो with the bodies, then it's capacitor, then it behaves as a capacitor, then behaves as a capacitor, it behaves as a capacitor, है ना। तो दूसरा जो क्वेश्चन बच्चों मेरे पास आता है, तो दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि सर ठीक है वो चार्ज तो प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है, वो चार्ज प्रोपोर्शनल हो गया, वो चार्ज होता क्या है, व्हाट इज दैट चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज Q इन फॉर्मूले, Q इज इक्वल्स टू CV, व्हाट इज Q, क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज Q इन Q इज इक्वल्स टू CV। इस फॉर्मूले में Q क्या है, तो आप इस बात को ऐसे समझोगे कि हो सकता है कि ये नेट चार्ज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, इज Q द नेट चार्ज, क्या Q जो है वो नेट चार्ज ऑन द प्लेट्स है, नेट चार्ज ऑन द बॉडी है, ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। तो इसका आंसर भैया मे और मे नॉट, मे और मे नॉट, मे और मे नॉट। ये जरूरी नहीं है कि वो नेट चार्ज हो ऑन द बॉडीज। तो भैया है क्या वो, तो इस बात को ऐसे समझो आप, this Q is that charge which makes pair with equal and opposite charge, with equal and opposite charge। वो चार्ज है जो पेयर बनाता है और जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एंड produces the electric field, or produces the electric field, hence the potential difference, you know, produces the electric field, hence the potential difference। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मान लो कि एक बॉडी हमने ऐसा रखा है, एक बॉडी हमने ऐसा रखा है और एक और हमने ऐसा रख दिया है, ठीक है, इसमें मान लो हम Q चार्ज ऐसे बच्चों दे देते हैं, ठीक है, प्लस Q, और यहाँ पे माइनस Q ऐसे डेवलप हो गया, ऑब्वियसली बात है ना। तो इन लोगों के बीच क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलपमेंट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आपको दिख रहा होगा वो। तो ऑब्वियसली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फ्लो कर रहा है तो इट्स हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब कि इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो गया है, जिसको हम बोल सकते हैं V इज इक्वल टू V1 माइनस V2। तो ये वो चार्ज है जो कि दोनों के बीच में इक्वल एंड अपोजिट पेयर बनाता है, चार्ज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और एक पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप करता है, ये वही चार्ज है। तो ऑब्वियसली आप बोलोगे सर ये तो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो नेट चार्ज के बराबर ही होगा, बट ऐसा केस नहीं है, इट मे और मे नॉट बी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं बच्चों, तो आप थोड़ा अच्छे से इसको समझ पाओगे, है ना। चलो देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि वो है क्या भैया, क्या सही में वो नेट चार्ज है या फिर वो कुछ और है, या फिर वो कुछ और है। चलिए देखते हैं ना। मान लो कि एक हमने एक बॉडी रख दिया, ठीक है, ऐसा कोई बॉडी है, एक और हमने बॉडी रख दिया और एक और हमने एक ऐसा बॉडी रख दिया, ठीक है जी। अब मान लो कि यहाँ पे हमने एक चार्ज दे दिया, लेट अस सपोज Q1, है ना, एक हमने Q1 चार्ज दे दिया, पॉजिटिव नेचर का हमने एक चार्ज दे दिया, ठीक है। अभी क्या होगा ना कि ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज Q1, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ऐसे इंड्यूस्ड हो जाएगा, which is gonna be of negative Q1 हो गया। अच्छी बात है, मान लो कि इसमें मैंने Q2 चार्ज दे दिया, आई गिव अ चार्ज ऑफ Q2 ओवर हियर, ठीक है, एक मैंने पॉजिटिव आपको चार्ज मैंने यहाँ पे मान लो कि एक नेगेटिव चार्ज दे दो, मान लो कि एक नेगेटिव चार्ज दे दो, है ना, लेट अस गिव अ नेगेटिव चार्ज, मान लो कि एक नेगेटिव चार्ज यहाँ दे दो, चलो जी नेगेटिव चार्ज दे दो, Q2 का नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा जिसका कि मैग्नीट्यूड होगा जी Q2 होगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत किसी को, सब बात समझ में सबको आ रहा है ना कि चार्ज इंडक्शन तो ऑब्वियसली बात है इक्वल एंड अपोजिट नेचर को होगा, तो अगर यहाँ पे हमने Q माइनस Q2 दिया है तो यहाँ पे एक प्लस Q2 इस साइड में डेवलप हो जाएगा। नाउ वी आर हैविंग द पेयर्स, एक पेयर यहाँ पे बन रहा है और एक पेयर आपको यहाँ पे बन रहा है, दो पेयर बन रहा है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का,
एंड दे आर कंडक्टिंग बॉडीज, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू डेवलप एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम यहां से दिखाएं बच्चों, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा डेवलप, यहां से यहां, क्योंकि अगर मान लो V1 है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो V1 हमारा हायर पोटेंशियल पे है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डेवलप हो जाएगा इस रीजन में। मान लो इसका पोटेंशियल V2 मान लेते हैं, तो ठीक है जी। तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डेवलप हो गया है और इसको मान लो पोटेंशियल V3 मान लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो चुका है। तो कैन आई से बच्चों कि हमारे पास दो पेयर ऑफ कैपेसिटर हो गया है। तो मान लो कि इनको हम C1 बोलते हैं, कैपेसिटर C1, और इसको कैपेसिटेंस हम बोलते हैं C2। अब ध्यान से देखोगे तो इस पे नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज तो आपका है Q2 माइनस Q1, है ना जी, नेट चार्ज इतना हो गया। बट इफ आई टॉक अबाउट दिस कैपेसिटेंस, अगर हम इस कैपेसिटेंस की बात करें तो C1 क्या लिख सकते हैं, C1 लिखेंगे हम लोग Q1 इंटू V1, समझ रहे हो ना, माइनस, अच्छा माइनस V2 कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ना, सही बात है। तो आपको दिख रहा है कि इस केस में नेट चार्ज तो इस पे Q1 नहीं है, बट फिर भी व्हाइल राइटिंग द कैपेसिटेंस आप Q1 देख रहे हो, है ना, आप एक Q1 देख रहे हो। मीनवाइल अगर हम कैपेसिटेंस C2 का बात करें तो दैट इज गोना बी Q2 V2 माइनस V3। तो इन शॉर्ट आपको समझ में आ रहा है कि कैपेसिटेंस में जो हम लोग फॉर्मूले में ये जो Q होता है दैट इज नॉट द नेट चार्ज, वो नेट चार्ज बिल्कुल नहीं है, ये वो चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है बाय मेकिंग अ पेयर विद द इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, ये वो चार्ज है। अगर आप थोड़ा सा और इसको समझ पाओ तो आप दोनों केस में नोटिस कर रहे हो कि जो चार्ज है दैट इज अ चार्ज व्हिच इज ऑन द पॉजिटिव वाले बॉडी पे जो चार्ज है ना, वो दिख रहे हो ना, वो भी समझ सकते हो, पर उसको हम पैरेलल प्लेट के लिए कन्फाइंड रखते हैं। अभी आप इतना समझ लो कि वो नेट चार्ज नहीं होता है, इंस्टेड दैट इज अ चार्ज व्हिच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि पेयर बनाता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के साथ। आई बिलीव आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। वीडियो पॉज करके जितने भी मैंने नोट्स लिखे हैं आप इसको नोट बना लो, क्योंकि यू हैव दिस पॉज बटन ओवर देयर, और पॉज बटन के साथ एक लाइक बटन भी है और एक सब्सक्राइब बटन भी है। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक इफ यू रियली फाइंड इट इंटरेस्टिंग और ये आपके यूजफुल है, कुछ इंफॉर्मेटिव है, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, दिस इज गोना हेल्प अस ऑफ कोर्स। नाउ गोइंग फॉरवर्ड हमने देख लिया कि जो चार्ज है वो क्या हो सकता है। अच्छा एक बात और देखो, सिंस हमने कैपेसिटेंस को फॉर्मुलेट कर दिया कि भैया Q is equals to CV, that means the value of C should be given as how much, Q upon V। इसका जो यूनिट होता है ना वो फैराड होता है, दैट इज द यूनिट इज फैराड, जो कि काफी बड़ा यूनिट है। दिस इज अगेन अ मिस्टेक ऑफ साइंस, दिस 1 फैराड इज टू ह्यूज, बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू होता है 1 फैराड। आपको बात समझ में आएगी व्हेन आई एम गोना डील विद द स्फेरिकल कैपेसिटर, आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा यूनिट है। दैट इज द रीजन व्हाई in the most of the books and the questions you will find microfarad, picofarad आपको मिलेगा ना। आपको फैराड में it's very rare to see the questions in terms of farad, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है टू अचीव दिस 1 फैराड ऑफ कैपेसिटेंस, है ना। ये बात आपको धीरे धीरे आगे चलने में समझ में आएगी। अभी क्या करना है कि अभी मेरे को चाहिए भैया इसका डिमेंशन क्या हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि इसका कैपेसिटेंस का यूनिट तो फैराड हो गया व्हिच इज कूलम पर वोल्ट, इसका डिमेंशन क्या हो सकता है अगर मैं आपको निकालने बोलूं, तो आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हो, है ना। मैं इधर ही कर दूं, चलो इधर ही कर लेते हैं ना। तो लेट अस फाइंड द राइट द हेडिंग डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर। डायमेंशनल फॉर्मूले अपने लोगों ने चैप्टर 11th में ही पढ़ रखा है। तो अगर हम देखें C इज इक्वल टू Q अपॉन V हो गया, ठीक है जी। अब देखो Q तो कोई फंडामेंटल यूनिट्स तो है नहीं, तो Q को हम कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको याद हो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है ना, इतना तो पता आपको। करंट इज इक्वल टू Q, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q क्या हो गया, करंट इनटू टाइम, और करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसको हम लिखेंगे A। तो डायमेंशन ऑफ जो चार्ज हो गया बच्चों वो क्या हो गया, AT, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये वाला पार्ट तो हमने कर लिया। अब इस पोटेंशियल का देख लो, पोटेंशियल क्या लिख सकते हो अगर आपको पता ही है। तो पोटेंशियल क्या हो गया, E इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन, आप मान के देखो V अपॉन R होता है, या V अपॉन Ln, आप जो भी चाहो आप उसको लिख सकते हो, है ना जी। तो कुल मिलाकर हम इस बात को समझ लें कि पोटेंशियल हमारा हो गया E इज इक्वल टू, या फिर ऐसे मत लिखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा ना। हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना कि वोल्टेज क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये आपको पता है। तो इससे मेरे को ज्यादा आसानी से मिल सकता है ना। तो वर्क क्या हो गया बच्चों, वर्क इज द एनर्जी। तो जो पोटेंशियल हो गया वो उसका डायमेंशन देखेंगे हम, तो हो गया एनर्जी का क्या होता है अपने को पता है, ml स्क्वायर t टू द पावर ऑफ -2
ये हो गया डायमेंशन ऑफ एनर्जी, और चार्ज को हमने जस्ट अभी निकाला है विच इज 80 है ना। अब इन दोनों को 1 और 2 को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कैपेसिटेंस का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा बच्चों दैट इज गोना बी 80, और इन भाई साहब को पुट कर दो तो ml स्क्वायर t टू द पावर ऑफ -2, और ये 80 ऊपर चला जाएगा तो आप इसको 80 स्क्वायर आराम से मजे में लिख सकते हो। तो देखेंगे इसको सिंप्लीफाई करके तो क्या हो जाएगा, m टू द पावर ऑफ -1, l आपका हो गया ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा l टू द पावर ऑफ -2 हो गया है ना, और ये क्या हो गया आपका t a स्क्वायर ऊपर लिख दे, t स्क्वायर हो गया, t ऊपर चला गया ना तो हो गया आपका -4 हो जाएगा ना जी, सही है, -2 + 2 4 हो जाएगा, और आपको हो जाएगा a टू द पावर ऑफ 2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ कैपेसिटेंस। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस हो गया बच्चों। आई बिलीव आपको ये बातें सारी समझ में आ गई होगी, बेसिक बातें। तो जस्ट टू समराइज, सो कैपेसिटेंस इज दैट इलेक्ट्रिकल डिवाइस which holds the charge or which stores the charge in terms of electric field, और हमको जब भी चाहिए उस एनर्जी को मिल सकता है। and it is the device which creates the electric field और पेयर बनाता है with equal and opposite charges, and hence it develops the electric field. Also it develops the potential difference between the two conducting bodies. Now why do we choose conductor? क्योंकि कंडक्टर का प्रॉपर्टी है कि वो इक्वल चार्ज को इंड्यूस कर देगा, और इक्वल को इंड्यूस करने से क्या बनेगा, पेयर बन जाएगा, है ना जी। तो whenever we have a pair of conducting devices which creates the potential which is proportional to the charge on the plates, then that device is going to be called as a capacitor. और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q proportional to V, which means Q is equals to, removing the sign of proportionality, Q is equals to CV, and that C is the capacitance. तो capacitance क्या बताता है, capacitance is the ability to store the charges. कितना चार्ज डेवलप कर सकता है, कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, that is the capacitance. बात समझ में आ रही है, वो कितने पोटेंशियल पे कितना चार्ज स्टोर करता है, दैट इज द कैपेसिटेंस। इसका यूनिट होता है फराड, और इसका आपका डायमेंशनल फार्मूला जस्ट हमने डेवलप निकाला है, m टू द पावर ऑफ -1, t टू द पावर ऑफ -2, l टू द पावर ऑफ 4 एंड a टू द पावर ऑफ 2। आप उसको याद भी कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, कभी कभी पूछ देगा तो आप इसको इजीली वहां पे आप आंसर कर सकते हो। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात हमने डिस्कस करी है बच्चों, that Q is not the net charge, it may or may not be the net charge, but definitely it is that charge which makes the pair with the equal and opposite charges, और जो कि उस केस में इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करता है। This Q is that charge which produces the electric field, और it is responsible for the electric field, और जो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, ये वो चार्ज है। ये नेट चार्ज हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, कीप दैट इन माइंड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर्स। तो आपके सिलेबस में आज आई टोल्ड यू वी हैव मेनली 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट्स, स्फेरिकल एंड द सिलिंड्रिकल। एंड आल्सो आई टोल्ड यू आपको जो मेजर स्टडी है वो हमारा पैरेलल प्लेट की तरफ ही रहेगा। तो चलिए आप डाल लीजिए हेडिंग टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ capacitor. So based upon the shape and size and the dimension, हमारे 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर को आइडेंटिफाई किया गया हमारे सिलेबस के लिए। एक हो गया पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल, है ना। तो आप इतनी बात को समझ पा रहे होंगे कि, है ना। सो बेस्ड ऑन द शेप एंड साइज, बेस्ड अपॉन द बेस्ड अपॉन द कंडक्टिंग बॉडीज शेप एंड साइज, कंडक्टिंग बॉडीज शेप एंड साइज, और शेप, है ना, शेप मानते हैं, साइज तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता बिटवीन द शेप। कैपेसिटर्स कुड बी ऑफ 3 टाइप्स, कैपेसिटर्स कुड बी ऑफ 3 टाइप्स, कुड बी ऑफ 3 टाइप्स, जिसमें मेन जो डोमिनेटिंग है वो हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा आपका हो गया स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल, हम लोग मान के चलेंगे, ये तीनों हो गया, और ये हो गया सिलिंड्रिकल, ठीक है, सिलिंड्रिकल। और जो जनरल फॉर्मूला है जो आपको कैपेसिटेंस का होना चाहिए, दैट शुड बी, अगर हम किसी चीज को लिख पाए Q is equals to CV, then that is gonna be the capacitor। वो कैपेसिटर की तरह काम करेगा। अगर हम लिख पाए चार्ज और वोल्टेज के रिलेशन को इस फॉर्म में लिख पाए तो वो हमारा एक कैपेसिटर का बच्चों काम कर रहा होगा, दैट इज गोना बी द कैपेसिटर। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, तो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, दिस इज द मेन फॉर्मूला, और इस पे सारे कुछ को हम लोग आगे बात को बढ़ाएंगे। अगर किसी भी कनेक्टिंग पेयर ऑफ बॉडीज को हम लिख पाए इस फॉर्म में, वो हो जाएगा कैपेसिटर, और हम उसको बड़े मजे में आराम से कर पाएंगे।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर से। हमारा जो पहला स्टडी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मान लो भैया कि एक प्लेट हमने रखा और एक प्लेट और रखा है, इसको हमने चार्ज दिया प्लस क्यू और इसको माइनस क्यू हो जाएगा, है ना। सो लेट अस सपोज कि एरिया ऑफ द प्लेट्स, ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है, आपको प्लेट ऐसे दिख रहा होगा, वो ऐसे दिख रहा है ना, ये प्लेट हमारा है, उसको हमने साइड व्यू देख रखा है, बट एक्चुअली वो है क्या, वो प्लेट है। तो दिस इज द प्लेट और इसका मान लो कि एरिया जो है वो ए है, तो हम इसको साइड व्यू देख रहे हैं, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, बट इन रियलिटी दैट इज अ प्लेट, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो इसके बीच का अगर डिस्टेंस हम डी रखते हैं एंड दिस डी इज गोना बी वेरी स्मॉल, बहुत कम होगा, स्मॉल होगा, है ना। तो लेट्स जस्ट सपोज कि और एरिया हमने ए रखा, ठीक है, एरिया हमने दोनों प्लेट्स का ए रखा है। नाउ दैट द एरिया इज ए, द सिग्मा, द चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज गोना बी क्यू अपॉन ए, इस बात को आप याद रखना, कूलम पर मीटर स्क्वायर, है ना। ये हो गया हमारा चार्ज डेंसिटी। नाउ द पॉइंट व्हाट आई वांट टू मेक टू ऑल ऑफ यू इज this d is going to be so damn small that if I stand over here, let's suppose कोई पॉइंट यहाँ पे कहीं भी एक पॉइंट है between these two plate of capacitor, तो for this particular point ये जो प्लेट है ना वो इनफाइनाइट दिखेगा, इनफाइनाइट दिख रहा होगा। और मैंने आपको पहले बता रखा है इंफिनिटी इज अ रिलेटिव टर्म। फॉर एग्जांपल अपने हाथ को देखो, ये आपका फिंगर टिप्स इजिली दिख रहा है, बट द मोमेंट यू ब्रिंग इट क्लोज टू द नोज आपको ये दिखना बंद हो जाएगा, जो कि वेरी स्मॉल था इनिशियली, बट दिस सेम स्मॉल distance is now appearing to me as an infinite distance the moment I bring it close to my nose। तो इन्फिनिटी एक रिलेटिव टर्म है, बिल्कुल भी इसको एब्सोल्यूट टर्म आपको नहीं मानने का, ठीक है। सिमिलरली इफ दिस डिस्टेंस इज डैम सो स्मॉल कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द दिस प्लेट्स, तो ये हमारा एक इन्फिनिटी टाइप का एक आपको समझ में आएगा, वो इनफाइनाइट हो गया है। और इनफाइनाइट होने के कारण लेट अस सपोज कि चार्ज को मैं थोड़ा ऐसे आपको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं बच्चों, ये हो गया आपका टिंग 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 टिंग, ऐसा, ठीक है। Now that it is going to behave as an infinite state of charge, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, इसके कारण किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा डेवलप हो जाएगा इस तरफ से। तो एक तो हो गया भैया आपके इस पॉजिटिव प्लेट के कारण वो कितना हो जाएगा, मान लो कि किसी एक पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे देख लेते हैं, ठीक है, लेट अस हैव अ लुक एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो इस पॉइंट पे एक फील्ड डेवलप होगा इन दिस डायरेक्शन में, लेट अस सपोज दैट इज E1। E1 कितना हो गया बच्चों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, एक इनफाइनाइट स्टेट ऑफ चार्ज के कारण जो फील्ड डेवलप होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। दूसरी बात, इस नेगेटिव भाई साहब के कारण एक और फील्ड होगा, इस तरफ डेवलप होगा, मान लो कि वो E2 है, तो E2 भी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का देखेंगे हम लोग, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अगर हम E नेट मान ले इस डायरेक्शन में, क्या हो जाएगी जी, दैट इज गोना बी E1 प्लस E2। तो भैया आपका जो E नेट हो गया दैट इज गोना बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या बन गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहली बात तो आपको समझ में आ रहा है कि इसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अच्छी बात है। दूसरी बात एक और समझ लेते हैं, क्योंकि इसके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, एक पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप होगा। तो अगर हम उस पोटेंशियल डिफरेंस को लिखना चाहें, V दैट इज गोना बी हाउ मच, E into D, बिकॉज डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना भैया, D है, राइट। दैट क्लियरली मींस E शुड बी रिटन एज V अपॉन D, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ लेट अस इक्वेट 1 and 2, 1 दोनों को इक्वेट कर दो, आपको क्या मिलने वाला है, देखो, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन D, ये आपको मिल गया V अपॉन D। सिग्मा क्या होता है जी, तो सिग्मा क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज Q है अपॉन एरिया, और इस एप्सिलॉन नॉट को मैं इस तरफ लेकर चला जाऊं तो किसी को दिक्कत, एप्सिलॉन नॉट V अपॉन D, इस A को भी लेकर चले जाओ भैया, तो Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D टाइम्स ऑफ V। अच्छी बात है सर, ये मेरे को तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। नाउ इफ आई डू द कंपैरिजन ऑफ दिस विद द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV, तो आपको समझ में एक बात और आएगा कि इफ आई डू द कंपैरिजन विद CQ इज इक्वल टू CV अपॉन कंपेयरिंग दीज टू, आपको क्या मिलने वाला है, the C should be given as epsilon naught A upon D, and this is the capacitance of a parallel plate capacitor। C is equals to epsilon naught A upon D, हमारा पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर होता है। तो कुल मिलाकर बात समझ में आ रहा है मेरे को कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में डेवलप होगा, कन्फाइंड होगा। आप देखो एनर्जी बाहर डिसिपेट नहीं हो रहा है, इट मींस जो एंटायर एनर्जी था वो इसी के बीच की रीजन के बीच में कॉन्सेंट्रेटेड है। वो क्यों होता है, और जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको स्टोर्ड है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको फॉर्मूला पता है कि दैट इज इक्वल टू V अपॉन डी। और दूसरी बात आपको पता है कि कंडक्टिंग प्लेट जो है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, उसी कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज गोना बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इन भाई साहब का करंट भी उतना ही होगा। ऐड अप करने से इतना मिल गया, दोनों को इक्वेट करके हम Q को V के टर्म्स में लिखेंगे और जो भी कांस्टेंट आएगा वो कैपेसिटेंस हो जाएगा। कहानी सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, है ना। दूसरी बात मेरे को समझ में आ रहा है कि जो कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करेगा, मीडियम परमिटिविटी पर डिपेंड कर रहा है। परमिटिविटी मीडियम का प्रॉपर्टी है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द परमिटिविटी व्हिच मींस इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। तो मैं अगर यहां पॉइंट वाइज आपको मैं लिख के दिखा दूं, लिख लो पहले इसको आप नोट कर लो, फिर हम बात करेंगे कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, ऑन व्हाट फैक्टर्स द कैपेसिटेंस डिपेंड्स, है ना जी। तो पहला पॉइंट आप लिख लो, कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, कैपेसिटर अगर हम लिख दें इसको, है ना, कैपेसिटेंस लिखेंगे ना, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, पॉइंट नंबर 1 आपका हो गया मीडियम। क्यों? क्योंकि ये परमिटिविटी मीडियम का प्रॉपर्टी है, राइट, और ये इसके प्रोपोर्शनल है, वो इस पे डिपेंडेंट है। तो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, कहां, किस मीडियम पे, इन बिटवीन दीज टू, किसी आस पड़ोस के मीडियम पे नहीं, बिटवीन द मीडियम व्हिच इज प्रिवेलिंग इन बिटवीन दीज टू। इसलिए हम बाद में पढ़ेंगे कि अगर इस प्लेट्स के बीच में एक डायरेक्ट्रिक्स खुला दें तो क्या होगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो जाएगा फिर, है ना, तो कैपेसिटेंस भी चेंज होगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे, समझेंगे। फिलहाल के आप लिखो मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। नंबर 2, और किस पे डिपेंड करता है भैया, इसके शेप साइज पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है ना। तो नंबर 2 जो आपको हो गया, इट डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी इस पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, और तीसरी बात है वो किस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली करता है, बट डिपेंड तो करता है जी, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे भी डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस between the plates. These are the few factors on which the capacitance of a body depends. और capacitance क्या होता है, it stores the energy in terms of electrical fields. इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड के माध्यम में। तो क्योंकि हमने कैपेसिटेंस निकालना सीख लिया है और हमको पता है कि एनर्जी स्टोर करता है, तो क्यों ना एनर्जी निकाला जाए। चलो नेक्स्ट रीडिंग डालो, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। आई बिलीव आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो पॉज कीजिए, आपके पास अगेन पॉज बटन है, तो आप इसको वीडियो पॉज करके आप इस चीज को नोट कर लो। हम बात को आगे बढ़ाएंगे और बढ़ेंगे एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर्स के बारे में ना। लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट हेडिंग, राइट डाउन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। आपको मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड्स लाइंस में पढ़ा रखा है कि जो एनर्जी होता है और एनर्जी डेंसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी, अगर आपको याद हो, एनर्जी डेंसिटी दैट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, दैट इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम एनर्जी लिखेंगे, अच्छा एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एनर्जी के बीच में, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे एनर्जी डेंसिटी जो होता है बच्चों, दैट इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, एनर्जी जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम होता है, दैट इज इक्वल्स टू हमारा हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू द ई स्क्वायर। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, सो एनर्जी इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। ये आपको बात अच्छे से पता है ना जी। तो अब हम देख ले, एनर्जी चाहिए मेरे को, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम समझना इस बात को कि अगर दो प्लेट्स है ऐसे, तो ऐसे देखेंगे ना तो मेरे को समझ में आ रहा है कुछ एरिया तो कवर अप कर रहा है ना, एरिया कुछ मैं क्या दिखाऊं आपको, अच्छा ठीक है ऐसे समझ लो ना, ये दो प्लेट्स है तो इसके बीच में कुछ वॉल्यूम हो रहा है, राइट, देखो इसके बीच में कुछ वॉल्यूम होगा ना, जो कि इसके एरिया और डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होगा जी। तो आप लिख सकते हो एनर्जी वॉल्यूम, वॉल्यूम को इस तरफ लेके चले जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू डी, दैट इज द वॉल्यूम बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स, है ना। आप ध्यान से देखोगे, अरे अरे रे रे रे, है ना, अगर हम ऐसे देखें, ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ना, दैट इज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, वही वॉल्यूम का हम रेफरिंग है ना, उसी वॉल्यूम को मैं रेफर कर रहा हूं बच्चों। अरे अरे रे, चलो ऐसे ना, तो ये जो आपका वॉल्यूम टिक 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 टिक, ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है ना, तो ये हो गया आपका डी और ये हो गया आपका एरिया, है ना।
तो एरिया इंटू डी इज गोना बी दिस वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, वो मैं यहां लिखना चाह रहा हूं, इनटू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये आपको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। अच्छा एक बात तो और ये कौन सा वॉल्यूम है, इसको लिख लो, तो दिस वॉल्यूम इसको लिख लो, वरना आप लोग बाद में, दिस वॉल्यूम रेफर्स टू वॉल्यूम इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जिस्टिंग, जहां पे वो एग्जिस्टिंग है, जहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि कभी कभी इस पे क्वेश्चंस में ट्विस्ट किया जा सकता है, तो आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए कि किस वॉल्यूम के बारे में बात करें, जहां पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, उस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। वी टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम, है ना जी। अच्छा ठीक है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, अच्छी बात है। अगर हम इसको यहां पे रिप्लेस कर दे बच्चों, इसको रिप्लेस कर दे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन, या फिर हम ई को रिप्लेस कर देना, ई को कर दे रिप्लेस कर दे, ई क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। ई इज इक्वल टू हमारा क्या है इस फील्ड में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट है जी। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, क्यू, चार्ज को कैपिटल क्यू मान लेते हैं, क्यू अपॉन एरिया टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अगर हम ई को रिमूव कर दें यहां से, ये कहानी बन जाएगा, है ना जी। चलो ठीक है, और क्या, फिर कहानी बन गया, और क्या, तो यू हो गया आपका a इंटू डी, और ये हमारा एप्सिलॉन नॉट हो गया, और ये ई स्क्वायर, ठीक है जी, दैट इज गोना बी क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर, है ना जी। तो कुछ कटम पिटाई हो जाएगा, ए तो चला गया और एक एरिया चला गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो एनर्जी हो गया बच्चों, दैट इज गोना बी बम 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 यू नो क्यू स्क्वायर हो गया ना, हाँ, तो रहने दो, आपका हो जाएगा 1, और ये ऐसे लिख सकते हो, डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा, इस दिख रहा है ना कैमरा में, ये पार्ट दिख रहा है ना, बहुत अच्छे। इस पार्ट को थोड़ा सा रिमोडिफाई कर दो, तो लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर, दिख रहा है ना। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या हो गया, कैपेसिटेंस, मैं यहां पे थोड़ा लिख दूं इसको, तो जो एनर्जी हो गया बच्चों, दैट इज गोना बी हाउ मच, क्यू स्क्वायर अपॉन सी हो गया, राइट, क्यू स्क्वायर अपॉन सी। कुछ मिसिंग है क्या, कुछ, अच्छा ये हाफ हम मिस कर दिए ना, ओहो वही सोचे भैया, ये हाफ है ना, आप इस हाफ को यहाँ पे रहने दो, लेट अस नॉट रिमूव दैट, वरना हम गलत हो जाएंगे ना। तो 1/2 हो गया भैया, दिस इज क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन स्पेसिफिक, इन पर्टिकुलर, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। इसी को अभी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, अगर मेरे को पता है क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू कहां गया, सी इंटू लिख देंगे ना, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। अब तो फॉर्मूले का हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या था, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, तो इस क्यू को रिप्लेस कर दो सी इंटू वी से, तो क्या हो जाएगा, 1/2 सी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन सी, एक कट पिटा जाएगा, तो ये एनर्जी विल बी आल्सो रिटन एज 1/2 सी वी स्क्वायर, ये सेकंड हो गया जी, है ना। और अगर हम Q और C के टर्म्स में लिख चुके हैं, C और V के टर्म्स में लिख चुके हैं, नाउ आई वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ Q एंड V, तो क्या करेंगे, C को हटा दो, Q और V के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो C को हटा दो, तो C हमारा क्या हो गया, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो इधर मैं लिख लूं C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो एनर्जी क्या हो जाएगा 1/2 Q अपॉन V, तो V कट के हो जाएगा V, हाफ QV। ये हमारा 3 फॉर्मेट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आप इसको नोट करके रख लो, ठीक है जी। तो कुल मिला के हमने पैरेलल प्लेट्स के बारे में देख लिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द योर कैपेसिटेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर एंड द स्फेरिकल कैपेसिटर, हम उन दोनों के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्टडीing, and also don't forget to like, share and subscribe if you like the way I teach and if it is of certain use to you, ठीक है। मिलते हैं, टेक केयर, बाय एवरीवन।